تھکی ہوئی نہیں، سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت کیجیے۔ اجازت ہے جی کچھ گزارشات پیش کروں؟ عشرہ محرم کے علاوہ آپ کے ہاں یہ پہلی بار نوکری پیش کرنی ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں گفتگو اسی ذات کے متعلق کیا کرتا ہوں جس ذات سے مجلس منسوب ہو۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ آج کی یہ مجلس منسوب ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں مجالس میں، اسی جملے کو بنیاد بنا کر آج گفتگو کرنی ہے کہ سادات خصوصاً جو نقوی سادات ہیں وہ دعا فرمائیے گا۔ زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ زمانہ جنہیں مانتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں مل جائے۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے نہیں ساتھ دیا وہ بات جب پوری کروں گا پھر انشاءاللہ آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ زمانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ جنہیں زمانہ مانتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں مل جائے۔ اچھا، انہیں یہ بھی فکر نہیں کہ اچھے لفظوں میں ملے یا پھر نامناسب لفظوں میں ملے۔ آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن مجھ پہ بہت سارے کیمرے ہیں، میں بہت کچھ کہنا چاہوں بھی تو نہیں کہہ سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن میں مل جائے لیکن نہیں ملتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم سیاہ، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا اصغر بھی قرآن میں ہے، ان کا اکبر بھی قرآن میں ہے۔ اس خاندان کے ہر فرد کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ مجھے گفتگو کرنی ہے امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق، لیکن میں نے سہارا پھر بھی آیات کا لینا ہے۔ گفتگو اسی امام کے متعلق، لیکن سہارا آیات کا۔ جو پہلی آیت میں پڑھنے چلا ہوں یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں وہ خطیب ہوں جو واقعہ تو دور کی بات آیت بھی نتیجہ دینے کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ آیت بھی نہیں پڑھتا۔ ہر آیت بھی میں نہیں پڑھا کرتا، جس آیت سے مجھے نتیجہ دینا ہو وہ آیت پڑھتا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مالک کب سے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا تب سے خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ترجمہ میں آپ کو سنا چکا، لیکن چلو اگلا حصہ بھی آپ کو ترجمہ سنا دوں پھر بات کرتا ہوں اس پہ۔ اللہ نے جب زمینوں اور آسمانوں کو خلق فرمایا اسی دن سے خدا کے نزدیک خدا کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اس دن سے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12۔ ترجمے پہ غور رکھیے گا پھر نتیجے کی سمجھ آئے گی۔ لیکن ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جو ان میں کمی بیشی کرے وہ گمراہ بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو بندہ مانے کہ مہینے 13 ہیں کافر کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند۔ یہ باواز بلند ہے تو پھر ایک دھیمی سی بھی پڑھیے۔ آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، اونچی بولنے سے سردی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھیں گے تو پھر سردی نہیں لگے گی جناب کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجلس پڑھنے کا حق یہ ہے کہ شور مچایا جائے، زور لگایا جائے۔ میرے نزدیک مجلس پڑھنے کا حق یہ ہے کہ قوم تک کچھ پہنچایا جائے۔ اللہ کے نزدیک جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اسی دن سے اللہ کے نزدیک اور اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جو ان میں کمی یا بیشی کرے وہ گمراہ بھی ہے اور کافر بھی۔ اب جو مہینے 13 مانے کافر کیوں؟
اچھا اگر کوئی بندہ کہے مہینے 11 ہے تو پھر کافر کیوں؟ اس لیے کہ مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 خدا کے نزدیک تو ہے، لیکن مہینے کا انکار تو کفر نہیں، کفر تو اس کا انکار ہے جسے خدا نے بھیجا ہو۔ بات واضح نہیں ہوئی تو پھر میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، اسی دن سے خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12۔ اس کا مطلب ہے یعنی زمین و آسمان جب خلق نہیں ہوئے تب بھی مہینوں کی تعداد خدا کے نزدیک 12 تھی۔ جب آسمان نہیں تھے تو چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، گردش لیل و نہار نہیں تھی۔ جب گردش لیل و نہار نہیں، دن اور رات نہیں تھے، پھر جب دن اور رات کا تعین نہیں تو مہینے کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں مہینہ 29 دن کا ہو، 30 دن کا ہو، 31 دن کا ہو، پتہ تو تب چلے گا جب دن گزرتے جائیں گے، بتدریج دن گزریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ دن مکمل ہوا، ہفتہ مکمل ہوا، مہینہ مکمل ہوا۔ جب آسمان نہیں، زمین نہیں، چاند نہیں اور سورج نہیں، پتہ کیسے چلے گا دن کب گزرا، رات کب آئی؟ جب رات اور دن کا پتہ نہیں چلے گا، مہینے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور مہینے کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کافر تب ہوتا ہے جب خدا کی بھیجی ہوئی آیت کا انکار کیا جائے۔ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، نہ ملے تو مجھے حکم کیجئے گا، واٹس ایپ کر دوں گا، جب اگلی مرتبہ حاضر ہوا تو کتاب ساتھ لے آؤں گا۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نمبر 36، تفسیر نور الثقلین جلد 4 میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سے 12 ہیں جو اللہ کے نزدیک، جو یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جو تب سے اللہ کے نزدیک 12 ہیں؟ فرمایا وہ 12 جو میرے بعد میرے نائب ہیں، جی جو میرے بعد میرے نائب ہیں، یعنی وہ 12 مہینوں، شہور سے مراد مہینے نہیں، شہور سے مراد امامت ہے، یعنی جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا تھا تب بھی اللہ کے نزدیک رسول کے بعد حجت 12 تھی۔ نہیں سب نے ساتھ نہیں دیا تو پھر میں جملہ بڑھا دیتا ہوں، فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے ہیں جو 12 میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں؟ فرمایا جن کے نام علی ہیں، وہ 12 میں سے جن کے نام علی ہیں۔ اچھا جو بتایا جاتا ہے عام روٹین میں، جس وجہ سے میرا مجمع خاموش ہے، جی وہ مہینے جو ہے نا 12، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، 3 مسلسل اور چوتھا رجب۔ یہ بتایا جاتا ہے یہ 4 جو ہے نا یہ حرمت والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس نے کمی کی وہ بھی کافر، جس نے بڑھایا وہ بھی کافر، کیونکہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ 12 وہ میرے بعد والے امام ہیں، اور 4 حرمت والے وہ ہیں جن کے نام علی ہیں۔ اب ذرا غدیر پر نظر مارنا، اللہ نے فرمایا نہیں تھا اعلان تو کر الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ بندہ کافر مہینے کا انکار کرنے سے نہیں ہوتا، آل محمد کی ولایت کا انکار کرنے سے ہوتا۔ فرمایا وہ 4 جن کے نام علی ہیں وہ زیادہ حرمت والے ہیں۔ پہلا علی مرتضی، دوسرا علی زین العابدین، تیسرا علی الرضا، چوتھے علی ہادی، امام علی نقی علیہ السلام۔ وہ 4 جن کے نام علی ہیں وہ چاروں زیادہ حرمت والے ہیں۔ اچھا سن ہجری ہمارے پاس آج بھی رائج ہے، یہ تب شروع ہوا جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی، تو سن ہجری شروع ہوا۔ سن 212 ہجری یا 214 ہجری، 2 روایتیں ہیں۔ امام علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے۔ میں پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس پہ ہرگز بحث نہیں کرنی ہوتی کہ کیسے آئے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کیسے آئے، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ میری ہدایت کے لیے آ گئے۔
नहीं, एक छोटा सा जुमला अर्ज करता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। शिया सुन्नी में बहस होती है। हम शिया ये कहते हैं कि कब्र में जनाब अमीर आते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं कि रसूल खुदा आते हैं। ऐसा ही है जी। वैसे इस बात पर झगड़ा करना नहीं चाहिए। मेरा अपना एक जाती गुजरा हुआ वाकया, खुरड़ियावाला में आजकल रहायश पजीर हूं, तो 22 जमाती उसानी को दस्तरखान था करीब एक गांव में, तो सादात ने मुझे कॉल की, वो शाह साहब जो जिनके यहाँ दस्तरखान लगता था, आपने आना है। उसी दिन की बिल्कुल उसी वक्त की एक जगह से दावत और आ गई। अब मैं सोचूं कि कहाँ जाऊं। मौलवी आदमी था, खाना तो छोड़ना ही नहीं चाहता था, जरूर जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, दोनों का वक्त एक दिन एक, अब क्या करूं। शाह साहब जिन्होंने पहले कॉल की थी उन्हें मैंने कहा कि शाह जी तकरीर तो नहीं करनी, उन्होंने कहा नहीं तकरीर नहीं करनी। जिन्होंने बाद में कॉल की थी उन्हें पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पहले मरतबा दस्तरखान है, अहले सुन्नत की तादाद ज्यादा है, लिहाजा तकरीर करनी है। मैंने अपने छोटे भाई से कहा एक जगह तू चला जा, एक जगह मैं जाऊंगा। उसने कहा अगर तकरीर करनी हुई, मैंने कहा जहां तकरीर करनी है वहां मैं खुद जाऊंगा, जहां नहीं करनी वहां तू चला जा। सादात को मैंने कहा शाह जी मेरा छोटा भाई आ जाए, आपको एतराज तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपकी तरफ से शमूलियत होनी चाहिए, चाहे आप आ जाएं छोटा भाई आ जाए। ठीक, मैंने छोटे भाई को भेज दिया। उस दिन मुझे समझ आई कि हमें आने वाले से गर्ज नहीं होनी चाहिए, अपनी निजात से गर्ज होनी चाहिए। भाई बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, हमें निजात से गर्ज, हमें इस बात से गरज ही नहीं कि नबी ने आना है या अली ने आना है। नबी आ गए कब्र फिर भी रोशन हो जाएगी, अली आ गए फिर भी बात बन जाए। हमें अपनी निजात से गर्ज है, आने वाले से गर्ज नहीं। नूर जब एक है, वो आ जाए या वो आ जाए, बड़े भाई की मर्जी है, दिल करे तो खुद आए, नहीं तो कहे या अली तू चला जा। अली भी आ गए तो हमारी बात बन जाएगी, हमारे लिए ये काफी है। कैसे आए मुझे इससे गर्ज नहीं, आ गए मेरी हिदायत के लिए ये बात काफी है। सन 212 हिजरी या 214 हिजरी जब हिजरत फरमाई पैगंबर इस्लाम ने, अमीर कायनात की हयात तैयबा 21 साल थी। 214 में 21 शामिल कर लें, 235 साल बनते हैं। कायनात ने देखा 235 साल के बाद फिर मोहम्मद के हाथों पे अली था। जिसकी तवज्जो मेरी गुफ्तगू में हो, कायनात ने देखा 235 साल के बाद फिर मोहम्मद के हाथों पर अली था। याद है ना 13 रजब जनाब को, और मुस्तफा के हाथों पे मुर्तजा आए, मोहम्मद के हाथों पे अली आए। अब मोहम्मद तकी के हाथों पे अली नकी। रजब की 5 थी, सन 212 या 214 हिजरी। वालिद का नाम मोहम्मद तकी, वालिदा माजिदा का नाम हजरत समाना खातून। अपने एक खादिम को 70 दिनार दे के इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने भेजा कि जा मेरे लिए कनीज खरीद के लेके आ। लेकिन यूं ही कनीज नहीं खरीदनी, जिसके पास भेज रहा हूं वो जो कनीजें फरोख्त करता है उसे कहना तेरे पास वो कनीज जो सबसे पर्दा करती हो। वो कहेगा कि बीमार है तो उसे कहना बीमारी से गर्ज नहीं। मतलब वो कीमत कितनी मांगेगा, फरमाया जितनी मांगेगा उतनी इस थैली में मौजूद है। तो जो फरमाएंगे तो फिर मैं बहुत कुछ अर्ज कर जाऊंगा, वरना फिर मैं समेट के गुजर जाऊंगा। 70 दिनार में खरीद के ले आए, अक़द हुआ। हालांकि इससे पहले इमाम के घर में एक ऐसी ज़ौजा उम्मुल फज़ल मामून की बेटी, वो भी बीवी के तौर पर इमाम के घर में मौजूद थी। बड़ा उसने तंग कर रखा था, लेकिन खुदा का फैसला ये था। अच्छा, वो आई थी, वो चूंकि शहजादी थी, वो बादशाह की बेटी थी, वो वही माहौल चाहती थी। इस घर में या कुरान होता था या मुसल्ला होता था, वो माहौल उसे मिलता ही नहीं था जो वो बाप के घर में छोड़ के आई थी। रोज बाप को खत लिखती थी, अपनी जिंदगी भी खराब की हुई थी, अपने बाप को भी सुकून से महरूम रखा था, इमाम अलैहिस्सलाम को भी सुकून से नहीं रहने देती थी। अल्लाह ने सजा ये दी कि अल्लाह ने औलाद नहीं दी। ये जो हुज्जत को तंग करे ना, अल्लाह उन्हें औलाद नहीं देता। और जिन्हें पता है खिताबत किसे कहते हैं, जो इल्म सुनना चाहते हैं,
जो हुज्जत को तंग करे खुदा उसे औलाद से महरूम रखता है। और आज की मजलिस में अगर ये एक जुमला मैंने जनाब को समझा लिया, मेरे आने का हक अदा हो जाएगा। हजरत समाना खातून की सबसे बड़ी जो खसलत थी वो ये थी कि वो दिन साल में जिनमें खुदा ने मना कर रखा है, उसके अलावा बीबी हर दिन रोजा रखती थी। यानी वो दिन जिनमें शरीयत मना करती है कि इन दिनों में रोजा न रखो, इन ईद के दिन रोजा न रखो। कुछ दिन ऐसे हैं, 17 किस्में मासूम ने बयान फरमाई रोजे की, जिनमें कुछ वाजिबात हैं और वाजिब रोजे हैं, कुछ सुन्नती रोजे हैं, कुछ रोजों से मना किया गया, हराम करार दिया कुछ रोजों को। यानी जिन दिनों के रोजे शरीयत रोकती थी, उनके अलावा हर दिन ये बीबी रोजा रखती थी। ताहिरा कहा गया तारीख में इस बीबी को। घर में तशरीफ लाई, चूंकि हुज्जत की वफादार थी, खुदा ने इनाम में बेटा अता कर दिया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, वो जो पहले यूं ही तंग थी, अब सौतन को औलाद मिल गई। अब उसके हसद में इजाफा हुआ। लेकिन ये चूंकि मासूमाना मिजाज रखती थी जनाब समाना खातून, इन्होंने उसका कोई असर नहीं लिया। जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तैयबा में इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जो 7 बाप के जो वक्त गुजारा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने, वो 6 साल और 5 महीने। मैं जब ऐसे हिंद से बताऊं ना, उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा, मैंने पूरी तहकीक की होती है उसमें। 6 साल 5 महीने वालिद के साथ गुजारे, 33 साल 9 महीने वालिद के बाद गुजारे। 5 रजब सन 212 या 214 हिजरी दुनिया पर तशरीफ लाए। उसूलन ये बात मसाइब में करनी चाहिए, लेकिन फिर मजमा ऐसी बातों पे तवज्जो नहीं करता और मसाइब का रब्त बरकरार नहीं रहता। 3 रजब 254 हिजरी बरोज सोमवार दोपहर के वक्त शहादत पाई। 254 हिजरी 3 रजब बरोज सोमवार दोपहर के वक्त, यानी कल जो दिन आएगा, शहादत पाई। जरूरी बातें जो मुझे करनी थी इमाम अलैहिस्सलाम के दल्ला, वो मैं कर चुका। अब आइए फिर वापस आयात का सफर करते हैं। जाहिरी हयात तैयबा वालिद के साथ गुजारी 6 साल 5 महीने। अब गैर शिया लोग एतराज करते हैं कि जी 6 साल का बच्चा इमाम कैसे बना। आओ कुरान से पूछते हैं कि 6 साल की उम्र में कोई हुज्जत बन सकता है? साथ देंगे तो मैं कुरान आयात का सफर करूंगा। जी मैं बहुत कुछ कह जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपने मेरा साथ दिया। 6 साल की उम्र में कोई बच्चा, हालांकि शियत के यहां यह कानून है कि अल इमाम इमामन वलौ कान सबियन, इमाम ही होता है चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। हुज्जत ही होती है चाहे वो मां की गोद में क्यों ना हो। आओ कुरान से पूछें, क्या कोई 5-6 साल का बच्चा खुदा की हुज्जत बन सकता है? क्या लोगों का हादी बन सकता है? लो जी, सूरह मुबारका मरियम से 4-5 आयतें इब्तदाई उनका तर्जुमा रखूंगा आपके सामने, फिर एक आयत पढ़ के मुझे नतीजा देना है। फरमाया जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ए हबीब जिक्र करो अपने रब की उस रहमत का जो उसने अपने अब्द ज़करिया पर की। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, जब उसने अपने रब को खुफिया तौर पर पुकारा। काला रब्बी इन्नी वहनल आज़्मु मिन्नी वश्तअला रअसु शैबुन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। फरमाया मालिक मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे गोश्त ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया है, मेरी कमर खमीदा हो गई है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, औलाद मेरी नहीं है। वश्तअला रअसु शैबुन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, मालिक मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं तुझसे दुआ मांगू और तू मेरी दुआ कबूल न करे। फरमाया वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरे गोश्त ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया है, और बीवी मेरी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं, कमर में खम आ गया है, बालों में सफेदी आ गई है, गोश्त ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया है। अगर आप सादात तवज्जो फरमाए तो जनाब ज़करिया ने फरमाया इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन बराई, मैं डरता हूं अपने मानने वालों से जो मेरे बाद मेरे मिंबर पर बैठने वाले हैं। अपने मानने वालों से डरता हूं। अगर आपने कभी तवज्जो से मजलिस का ऐलान सुना हो ना, तो ऐलान किया जाता है कि फलां दिन फलां जगह पर फलां वक्त पर मजलिस से अज़ा होगी। तमाम मवालियाने हैदर कर्रार को
इत्तला दी जाती है कि मजलिस में शिरकत फरमा कर जनाब सैयदा की दुआ हासिल करें। ऐसा ही है ना, मवालिया ने हैदरे करार, यानी मवाली कहते हैं मानने वालों को। अब आयत के लफ्जों पे गौर कीजिएगा, फरमाया व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने मवालियों का डर है। हुज्जत को डर दुश्मन से नहीं, पास जो रहते थे ना उनसे डर है। डर क्यों है? फरमाया बेटा मेरा है नहीं। हर नबी एक रास्ता छोड़ के जाता है जो कौम के लिए, मानने वालों के लिए, उम्मत के लिए हिदायत होता है। ये मेरे लफ्ज नहीं, ये देवबंदी आलम शबीर अहमद उस्मानी के लफ्ज हैं। कहता है हजरत जकरिया को डर ये था कि उनका बेटा नहीं है, उनके बाद उनका दीन का वारिस बनने के लिए कोई तो उनके मेंबर पे बैठेगा, और जो बैठेगा वो उनका बेटा नहीं होगा, क्योंकि उनका बेटा तो है नहीं। लिहाजा उन्हें डर था उनका जो उनके मेंबर पर बैठेंगे कि कहीं वो अपनी बद आमालियों और बद किरदारियों की वजह से, अपनी बद आमालियों और बद किरदारियों की वजह से जकरिया अलैहिस्सलाम को डर था कि वो अपनी बद आमालियों और बद किरदारियों की वजह से मेरा दिया हुआ रास्ता ना बिगाड़ डालें, मेरा दिया हुआ रास्ता ना बिगाड़ो। जो तारीख पढ़ते हो इसका मतलब है जो नबी के बाद नबी का रास्ता बदले वो बद अमाल भी है, बद किरदार भी। अब अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया मैं तुझे खुशखबरी देता हूं एक बेटे की जिसका नाम यहया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु शमिया, और उसकी निशानी यह है कि जो उसका नाम मैंने यहया रखा है वो नाम पहले कभी नहीं रखा गया। इसका मतलब है नबी के वारिस की निशानी ये होती है उसका नाम ऐसा होता है जो पहले नहीं रखा गया होता, उसका नाम जमाने के लिए नया होता है। अब जाओ तारीख पढ़ के देखो, अली से पहले अली कोई नहीं मिलेगा, हसन से पहले हसन कोई नहीं मिलेगा, हुसैन से पहले हुसैन कोई नहीं मिलेगा। ये नाम तारीख इस्लाम में तो क्या तारीख इंसानियत में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये नबी के वारिस हैं। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु शमिया, नबी के वारिस का नाम वो होता है जो पहले रखा नहीं गया होता। और जनाब ज़करिया वजअलहु रब्बी रज़िया, या अल्लाह उसे जब भेजना, भेजने से पहले अपनी रज़ाएं उसे अता कर देना, उसे भेजने से पहले अपनी रज़ाएं उसे अता कर देना, ताकि जब वो जमाने पे आ जाए उसके रज़ी अल्लाह होने की दुआ ना मांगनी पड़े। और जो मेरा साथ दोगे और जो मेरी बात पर तवज्जो करेंगे उसके रज़ी अल्लाह होने की दुआ न मांगनी पड़े। इसका मतलब है जो यहां आके रज़ी अल्लाह बने वो नबी का उम्मती हो सकता है, नबी का वारिस नहीं हो सकता। नबी का वारिस वहीं से अल्लाह की रज़ाएं लेके आता है। अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ज़करिया हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं, नाम यहया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु शमिया, उससे पहले वो नाम कभी नहीं रखा गया। तफसील में मुझे नहीं जाना। अल्लाह ने बेटा दिया जनाब यहया, 5 साल हयात तैयबा। जो वाक़या पढ़ने लगा हूं ये फ़ज़ाइल अमाल, जो देवबंदियों की तबलीगी जमातें आती हैं उनके पास किताब होगी फ़ज़ाइल अमाल, मौलाना ज़करिया की लिखी हुई, उसमें भी वाक़या मौजूद। 5 साल हयात तैयबा जनाब यहया की। रास्ते पे खड़े थे, रो रहे थे, कुछ बच्चों ने देखा, पास आए, क्यों रोते हैं, हमसे खिलौने ले लें, हमारे साथ खेलें। जनाब यहया खड़े रोते रहे। कोई आदमी पास से गुजरा, उसने कहा जनाब आप नबी हैं, नबी ज़ादे हैं, अगर खिलौने चाहिए तो मैं ले देता हूं। सूरह मुबारका अनकबूत में आयत है जो बाद में नाज़िल हुई, जनाब ज़करिया ने तिलावत की। फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो हमें बेकार खलक किया गया है, तुम समझते हो कि हम दुनिया पे खेलने के लिए आए हैं? ना ना ना, मैं जमाने की हिदायत के लिए आया हूं, खेलने के लिए नहीं आया। 5 साल हयात तैयबा, आयत पढ़ के बताते हैं मैं खेलने नहीं आया, तुम्हारी हिदायत के लिए आया हूं। ज़करिया का बेटा 5 साल की उम्र में हुज्जत बने तो कबूल है?
जकरिया का बेटा 5 साल की उम्र में हुज्जत बने तो तुम्हें कबूल, और अगर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 5 साल की हयात तैयबा में अपने बाप इमाम रजा के वारिस बने, एतराज। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम 6 साल की हयात तैयबा में अगर इमाम मोहम्मद तकी के जाननशीन बने तो एतराज। पता चला तुम्हें एतराज कम सीनी पे नहीं, एतराज आले मोहम्मद पे है। अगर कम सिनी पे एतराज होता तो जनाबे जकरिया के बेटे जनाबे यहिया पर भी एतराज किया जाता। देखिए रजब आ गया है, एतराज किया जाएगा जी 3 दिन का अली नबी के हाथों पे कैसे बोला। उन्हीं से फिर पूछो कि 3 दिन का ईसा मरियम के हाथों पे कैसे बोला। अच्छा कहेंगे वो नबी था तो बोल पड़ा, फिर उनसे पूछना वो 6 माह का बच्चा यूसुफ के हाथों पे कैसे बोला। यूसुफ के हाथों पे बच्चा बोल सकता है, मोहम्मद के हाथों पे अली नहीं बोल सकता। कुछ समझा पाया जनाब में कुछ। अब फिर सूरह मुबारक नमल की तरफ चलते। अल्लाह फरमाता ववारिस सुलेमान दाऊद, सुलेमान वारिस था दाऊद का, और उसने क्या कहा, वकाला या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, और उसने कहा ऐ लोगों अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया है। किसने कहा जी? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सुलेमान कौन था? नबी, हुज्जत, नबी का बेटा, साहिब किताब का बेटा। और खुदा ने जैसी बादशाही जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद को अता की और किसी नबी को अल्लाह ने ऐसी बादशाही अता नहीं की। तवज्जो फरमाए तो आगा नसीम साहब का एक जुमला दोहरा देता हूं। किबला फरमाया करते थे सुलेमान नबी ने मांगी हुकूमत, अल्लाह ने अता की अंगूठी। मांगी हुकूमत, अल्लाह ने अता की अंगूठी। पहन ली तो साहिब मुल्क, उतार दी तो बेमुल्क। लेकिन अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमाए, अल्लाह इस जुमले का सवाब उनकी रूह को पहुंचाए। वो फरमाया करते थे अंगूठी लेके हुकूमत करना और बात है, अंगूठी दे के विलायत की धूमें मचा देना और बात। अल्लाह क्या अजीम लोग थे, कैसी कैसी बातें कह गए। ज़ैदी साहब टिबला से किसी ने कहा एक एक जुमले में मेराज बयान करें। उन्होंने कहा मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। बंदे ने कहा जी एक जुमले में हिजरत पढ़नी है, सारी की सारी हिजरत एक जुमले में। अब देखिए अकल में आने वाली बात नहीं, पूरी हिजरत एक जुमले में। उन्होंने फरमाया वाह या अली तेरे क्या कहने, सोने की घड़ी वो भी चैन के साथ। जिन्हें समझ आई है, हर बंदा तो बारीक बात को नहीं समझ सकता ना। वाह या अली तेरे क्या कहने, सोने की घड़ी वो भी चैन के साथ। कैसे कैसे अजीम लोग थे। नबी ज़ादा कहता है कि खुदा ने मुझे परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया। चूंकि कुरान बता रहा है हम मानते हैं, लेकिन मैं मजलिसों में कहा करता हूं कि मैं आलिम नहीं, मैं मजहब अहले बैत का तालिब इल्म हूं। उलमा हमारे नजफ में है, कुम में है, मशहद में है, लेकिन मेरी पूरी आलिमाना जमाने बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता सुलेमान इब्ने दाऊद ने वो परिंदों की बोलियों का इल्म एक बंदे को भी सिखाया हो। जी मैं पूरी जमानत से कह रहा हूं, एक बंदे को भी जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद ने वो इल्म नहीं सिखाया। अच्छा नबी 2 तरह से इल्म सिखाता है, या जुबान के जरिए से कन्वर्ट करता है। 16 रजब देख लेना, 5 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और कुछ नहीं खाया, सिर्फ रिसालत माब की जुबान चूसा करते थे। यानी नबी 2 तरह से इल्म मुंतकिल करता है, या जुबान के जरिए से या फिर बोल के इल्म सिखाया जाता है। परिंदों की बोलियों का इल्म रखते थे सुलेमान इब्ने दाऊद, लेकिन आगे किसी को न मुंतकिल किया नबुव्वत के जरिए से, न किसी को सिखाया, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। न सिखा सके न मुंतकिल किया, खुद जानते थे, आगे नहीं पहुंचाया। अबू हाशम जाफरी रावी का नाम है, ये रिवायत बिहार में भी मौजूद है, दलाइलुल अमामा में भी मौजूद है, बहुत सारी कुतुब में मौजूद है। अबू जाफर हाशमी रावी है, वो कहता मैं बैठा था इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, कहता बातें करते करते अचानक मौला ने हिंदी जुबान में गुफ्तगू शुरू फरमाई। अब मुझे नहीं पता वो चुनौट वाली थी,
मुझे नहीं पता वो बहावलपुर वाली थी या लाहौर वाली थी, बहरहाल इस इलाके की किसी जुबान में इमाम ने गुफ्तगू शुरू फरमा दी। अबू हाशिम जाफरी कहता मैं हैरान हक्का बक्का रह गया, जब पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने कहा मौला ये जुबान कौन सी है, मुझे समझ नहीं आती। मौला ने फरमाया ये हिंदुस्तान की जुबान है। मौला मेरे साथ अरबी में गुफ्तगू करे, मैं ये नहीं जानता। इमाम फरमाते जानना चाहता है? जी मौला। फरमाया जाए कैंकरी लेके आ। अबू हाशिम जाफरी कहता मैं गया, छोटी सी एक कैंकरी ढूंढी, धोकर पाक किया, इमाम के पास लाया। इमाम ने उसे अपनी जुबान से यूं मस किया, मुझे देकर फरमाया अबू हाशिम चूस ले। अबू हाशिम जाफरी कहता जो ही मैंने अपनी जुबान पर रखी 70 जुबानों का आलिम हो गया था। खुद जानना और बात है, आगे पहुंचा देना और बात, वहां से ले लेना और बात है। नहीं, मैं एक जुमला कहूंगा ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आलम लाहूत के मुताबिक 6 घंटे जन्नत में रहे, जन्नत का लिबास इस्तेमाल किया, जन्नत के फल खाए। आपके बच्चों को भी इस बात का पता है। लेकिन जब अल्लाह ने निकाला, फरमाया ये लिबास यहां रख, ले जा नहीं सकता, इस्तेमाल कर सकता था, ले जाने की इजाजत नहीं। लाए तनवीर साहब जी मुझे बैठ के मैं बिठा दिया, कंबल पड़ा था मैंने ऊपर ले लिया, उठ के जाने लगा। मैंने कहा मतलब कंबल साथ रखूंगा? मौलवी साहब ये आपको इस्तेमाल के लिए दिया था, साथ ले जाने के लिए नहीं। यहां जब तक रहें इस्तेमाल करें, साथ नहीं ले जा सकते। अल्लाह ने फरमाया आदम जन्नत का लिबास यहां इस्तेमाल कर सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा मैं कंबल नहीं ले जा सकता, तनवीर साहब जी का दिल करे वो उठा के यहां ले आए। कल लाहौर जाना हो, घर वालों को पैक कर दें कंबल, मैंने साथ लेके जाना है, मैं एतराज कर सकता हूँ? शाह जी मैनू नहीं देता थे, आप ले चले। और मैं कह तू था मेहमान, मैं हूं वारिस, मेरा दिल करे मैं घर में इस्तेमाल करूं, मेरा दिल करे मैं साथ ले जाऊं। अल्लाह ने आदम तू लिबास उतार, क्योंकि तू मेहमान था। और जब जमीन पर मंगवाया गया, अगर आदम पूछे, अल्लाह कहेगा वो वारिस हैं, यहां पहन ले या वहां मंगवा, क्योंकि वो वारिस है ना जन्नत के। कभी हसन के लिए आ जाए, हुसैन के लिए आ जाए, तू मेहमान था वहां पर, तुझे इस्तेमाल का हक था। इसका मतलब जो सुलेमान इब्ने दाऊद को इल्म दिया गया, सिर्फ खुद तक रखने की इजाजत थी। एक देखिए ये शिया मजमे का ये मिजाज नहीं कि हर बात उंगली पकड़ के नतीजे तक ले जाना पड़े। वो अंबिया खुद जन्नत में जा सकते हैं, बांट नहीं सकते। वो अंबिया जन्नत में खुद जा सकते हैं, लेकिन जन्नत बांट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जन्नत की मलकियत नहीं रखते। जाएंगे जन्नत में रैयत बन के जाएंगे, मलकियत नहीं रखते, लिहाजा वो बांट नहीं सकते। और जो मालिकाना हुकूक रखते हैं, वो नौकर से कहते हैं बगदाद की गली में बैठ जा, मट्टी की ढेरियों को जन्नत के मकान बना के बेचे जा, क्योंकि मालिक हैं, खुद दे दें या नौकरों से कह दें, ये तो उनके अपने मिजाज की बात है ना। यही अबू हाशिम जाफरी 70 जुबानों का इल्म अता किया। कहता मैं जाना चाहता था इमाम रजा की कब्र की जियारत के लिए। मौला से कहा मौला मैं आपके दादा की कब्र के लिए कब्र की जियारत के लिए जाना चाहता हूं, मौला कुछ इरशाद फरमाए। इमाम ने फरमाया एक फिरोजा ले ले, फिरोजे के एक तरफ लिख माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दूसरी तरफ मोहम्मद और अली लिख, इसे उंगली में पहन के जाना, रहजनों से महफूज रहेगा। अगर कोई मोमिन किसी ऐसे रास्ते पे सफर करता हो, ड्यूटी पे आते जाते, जहां पे चोरी चकारी का खतरा हो, तो यही करो। इमाम ने फरमाया फिरोजा ले, एक तरफ माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिख, दूसरी तरफ मोहम्मद और अली लिख, उसे हाथ में पहन ले, रहजनों से महफूज रहेगा। मौला ठीक है। अबू हाशिम कहता है जिस दिन मैंने जाना था, फिर मौला की खिदमत में आया, मौला आज जाना चाहता हूं। फरमाया इस तरह कर, एक जर्द रंग का अकीक ले, उसके एक तरफ लिख अल मुल्कु लिल्लाह, दूसरी तरफ लिख अल मुल्कु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसे पास रख ले। जब तू सफर करेगा, जब तू कुम के पहाड़ों में पहुंचेगा, वहां एक शेर आएगा, उसे ये दिखाना। देखिए बज़ाहिर आपको अभी ये वाकया पुरलुत्फ नहीं लगेगा, जब नतीजे तक ले जाऊंगा फिर इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। उसे वो जर्द अकीक उसे दिखाना और उसे कहना मेरे मौला को हुक्म है रास्ता छोड़। इसने इसी तरह का पत्थर खरीदा, उस पर लिखवाया और चल पड़ा। रास्ते में जहां मौला ने बताया था वहीं पर शेर आया, इसने वो पत्थर दिखा रखा, मौला को हुक्म है रास्ता छोड़, चले गए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की, वहीं पे सो गया।
रिवायत के आखिर में है जुमला, लेकिन मैं पहले बताने लगा ताकि मैं बात समझा सकूं। वहां सो गया, जब सोया तो वो जो फिरोजा था दाएं हाथ में पहना था, सुबह उठा तो वो बाएं हाथ में था। आखिर में रिवायत में लिखा था, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं ताकि बात की समझ आए। सोया तो वो अंगूठी दाएं हाथ में थी, जागा तो अंगूठी बाएं हाथ में। ज़ियारत की, वापस गया। जब मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा तो कहने लगा मौला हालात सफर सुनाऊं? इमाम फरमाते सुना। मौला जैसे आपने फरमाया था ना कि राहजनों से महफूज रहोगे, मौला मैं उसी तरह महफूज रहा। मौला फिर जहां आपने फरमाया था शेर आएगा, मौला हकीकतन शेर वहां आ गया। मौला मैंने वही पत्थर दिखाया, आपको हुक्म सुनाया, मौला शेर ने रास्ता छोड़ दिया। मौला मैं गया, ज़ियारत की और बिल्कुल अमन से खैरियत से वापस आ गया। अब मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया अबू हाशिम तू भूल गया है, जब तू सोया तो अंगूठी दाएं हाथ में थी, जब तू जागा तो अंगूठी बाएं हाथ में थी। अब हक्का बक्का, जी मौला ऐसे ही हुआ था, पर मौला आपको कैसे पता? मौला फरमाते तू सिर्फ ये जानता है कि मुझे कैसे पता, मुझे ये भी पता है दाएं हाथ से बाएं हाथ में पहुंची कैसे थी। मौला फिर बताइए, इरशाद फरमाइए कैसे? फरमाया वो जो मैंने तुझे बताया था ना, लिखवा ले, वो मर्जों के लिए शिफा है। मौला तो फिर फरमाया तू सोया हुआ था, सिर्फ तुम नहीं जाते मेरे दादे रजा की कब्र की ज़ियारत के लिए। मौला और कौन आता? फरमाया जिन्नात भी आते हैं। मौला फिर क्या हुआ? फरमाया तू सोया हुआ था, जिन्नात ज़ियारत के लिए आए, उन्होंने तेरे हाथ में अंगूठी देखी, उनके घर में कोई मरीज था जो लाइलाज था, उन्होंने तेरे हाथ से अंगूठी उतार ली, ले गए उसे पानी में डुबोया, पानी अपने मरीज को पिलाया, मरीज शिफा याब हो गया। अब जो अंगूठी वापस लाए उनसे गलती ये हुई, उन्होंने दाएं हाथ के बजाय बाएं में पहना दी। अबू हाशिम कहता मौला ऐसा है। फरमाया अबू हाशिम तू एक बात और भूल रहा है। मौला कौन सी? फरमाया तू जब जागा तेरे सरहाने एक सुर्ख याकूत भी पड़ा हुआ था। जी मौला पड़ा था, जेब से निकाल के ना मौला ये था। फरमाया बाजार ले जा, 80 अशरफी का बिकेगा। मौला ये सुर्ख याकूत कहां से आया? फरमाया चूंकि उनका मरीज ठीक हुआ था, उन्होंने ये तुझे बतौर तोहफा दिया है। मुझे बहस नहीं करनी कि आइम्मा के पास इल्म गैब होता है या नहीं होता। हां ये जरूर कहूंगा, कायनात हर इमाम के सामने उसकी हाथ की हथेली जैसी होती। मैं जब बैठा तो मैंने टाइम नहीं देखा। सलवात पढ़िए मिलकर बाबा। कह रहे 50 हो गए। अच्छा अब मुझे ज्यादा तफसील की तरफ अब मैं नहीं जाऊंगा। एक जुमला और बस मां साहिब की तरफ आना है मुझे। सुलेमान इब्ने दाऊद के पास इल्म था, आगे नहीं दे सकते थे। आले मोहम्मद को अल्लाह ने वो इख्तियार वो इख्तियार अता किया है, चाहे तो अपने पास रख लें, चाहे तो आगे अता कर दें। देखिए अल्लाह ने जनाब मरियम को बड़ी इज्जत और असमत अता की। कुरान पढ़िए, तारीख पढ़िए, कहीं नहीं मिलेगा मरियम किसी फरिश्ते को डांट सकी हो, नहीं कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान पढ़ के देखिए, जनाब ज़हरा नहीं कनीज़ें रोक लेती हैं। बीबी फिजा ने फरमाया तुझसे ना जजा चाहिए ना शुक्रिया चाहिए, तुझे तो रोटियां जो हल्ला के सदके में दी। खुदा ने इस खानदान को वो इज्जत अता की है जो साबिकीन अंबिया को भी अता नहीं की। जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद दरबार लगा है, मलका बल्कीस का तख्त कौन लाएगा? हर बात की तफसील में जाने का वक्त नहीं होता। कौन लाएगा मलका बल्कीस का तख्त? काला इफरीतुम मिनल जिन्न अनाती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। इफरीत, एक जिन्नों में से एक इफरीत बोला, उसने कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊंगा। कितनी देर में? दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। अगर आप महसूस ना फरमाएं तो अगला जुमला मैं पंजाबी में कह दूं जनाब। और जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद ने फरमाया ना मलका बल्कीस का वो 700 मील के फासले से तख्त लाना था। कौन लाएगा? जिन्नों में से इफरीत एक देव बोला, उसने कहा मैं लेके आऊंगा। कितनी देर में? आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले। अगर जुमले का लुत्फ ले तो आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले। जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद ने फरमाया बैजा रोंदा जेन बनन, दरबार बर्खास्त होने तक इतना वक्त मेरे पास कहां है, मैं इतना इंतजार करूं। कुरान कहता है काला, फिर वो बोला जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक,
मैं लेके आऊंगा। कितनी देर? फरमाया उधर देखिए। उधर देख के सुलेमान इब्ने दाऊद ने सामने देखा, तख्त पड़ा हुआ था। इधर देखिए ना, यूं यूं देखा जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर देख के वापस देखिए, यूं नजर घुमा के वापस सुलेमान इब्ने दाऊद ने देखा तो तख्त सामने। लाया कौन था? आसिफ बिन बरखिया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले 700 मील से वो तख्त कैसे लाए थे? अच्छा, ना गया जी, अली खैबर में कैसे पहुंचे? आसिफ बिन बरखिया जाए बगैर तख्त मंगवाए तो कबूल है? यानी तुम्हें एतराज सिर्फ अली की जात पे है, गए भी नहीं, वहीं बैठे बैठे, देर भी कोई नहीं लगी, पलक झपकने से पहले सुलेमान इब्ने दाऊद के सामने तख्त मौजूद था, मलका बिल्किस का। आगे बंदे ने पूछा, मौला ये कैसे आया था? इमाम फरमाते हैं, आसिफ बिन बरखिया के पास इस्मे आजम था। आसिफ बिन बरखिया के पास इस्मे आजम था, उसने इस्मे आजम पढ़ा, तख्त आ गया। मौला आपके पास भी है? मैंने जोर नहीं लगाना जनाब, जोर मैंने नहीं लगाना, लेकिन अगर काश जो जुमला मेरा आपके जहनों में, दिलों में उतर जाए, मौला आपके पास भी है? फरमाया उस जात की कसम जिसने मुझे हुज्जत बना के भेजा है। फरमाया कुल इसमें आजम 73 हैं, आसिफ बिन बरखिया सिर्फ एक जानता था, बाकी 72 हम जानते हैं। उसने कहा, मौला अच्छा ये बस यहीं पे मुझे मेंबर छोड़ना है फजाइल के हवाले से। मौला अच्छा आपके पास 72 हैं? इमाम फरमाते हाँ। मौला फिर तो आप कायनात पर इख्तिदार रखते हैं। मौला फरमाते तू चाहता क्या है? उसने कहा, मौला मैंने सुना है आपके नाना रसूल खुदा भी मेराज पर गए थे, आपके दादा अली भी गए थे, आपके दादा ज़ैनुल आबिदीन भी गए थे, आपके दादा मूसा काज़म भी गए थे, मौला आप जा सकते हैं? अच्छा, मेरा मजमा हैरान पता क्यों है? उन्होंने सिर्फ रसूल खुदा का सुना। रसूल खुदा को मेराज एक नहीं हुई, मेरे नबी 27 मरतबा मेराज पे गए, 27 बार हुजूर को मेराज हुई। और सिर्फ हुजूर नहीं, मौला अली भी गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब कभी मजलिस मंसूब हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो भी सुना दूंगा। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने मुहर्रम में पढ़ा था, और फिर बहुत सारे बंदों को तबखीर भी हुई थी। फिर हवाले पूछेगा, मैं बगैर किताब के, बगैर हवाले के मैं बात नहीं करता जनाब। उसने कहा, मौला आप जा सकते हैं? मौला फरमाते जा सकता हूं। मौला कब जाएंगे और कब आएंगे? फरमाया जब कब की तो बात ही नहीं, तू आंख झपक मैं गया और आया। मौला आप चले जाएंगे, आप आ जाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आप गए थे, आप आए थे? मौला फरमाते तू क्या चाहता है? उसने कहा, मौला आप वहां से कुछ लेके आइए। अच्छा, ये जब जाते हैं तो गलत फहमी जहन में ना रखना कि ये जन्नत जाते हैं, ये जन्नत में नहीं जाते, अर्श पे जाते हैं। वरना तारीखें पढ़ के देखिए, अर्श में जाने के बाद अगर सैर करने जन्नत में चले जाएं तो अलग बात है। मैं तो समझता हूं शायद मेरे नबी ने बिलाल के कदमों की धमक बतानी थी, तब जन्नत में गया था। जमाने को पता चले कि हमारे घर का नौकर वहां फिरता है, उसके कदमों की धमक वहां तक जा रही है। मौला आप जाएंगे? जाऊंगा। कितनी देर में? मौला फरमाते तू पलक झपकेगा मैं आ जाऊंगा। मौला ज्यादा देर तो नहीं लगी। इमाम फरमाते तू पलक झपकेगा आ जाऊंगा। मौला मेरे लिए कुछ लाएंगे? इमाम फरमाते ले आऊंगा। मौला जाए फिर? फरमाया तू पलक झपक। कहता मैंने देखा इमाम यूं फजा में बुलंद हुए। दलाइलुल अमामा तबरी बाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पढ़िए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किताब दिखा जाऊंगा जाने से पहले। इमाम यूं फजा में बुलंद हुए, आहिस्ता आहिस्ता यूं बुलंद हुए कि मेरी नजरों से ओझल हो गए। वहां से इमाम ने फरमाया आंखें झपक। कहता नजरों से ओझल हो रहे थे, आंखें झपकी, मैंने यूं बंद करके खोली तो इमाम मेरे सामने। कहता मैंने देखा इमाम की हथेली पे एक सोने का परिंदा था, उस परिंदे के कानों में सोने की बालियां थी, चूंच में एक मोती था। मौला ये क्या है? फरमाया जब मैं गया तो ये ज़ेरे अर्श था। देखिए मेरी खतीबाना गलती कि मैं बहुत ज्यादा जोर लगाऊं फिर मेरा मजमा तवज्जो फरमाएगा, लेकिन मैं ज्यादा जोर लगा के बात को जाया नहीं करना चाहता, इसलिए कि आगा नसीम साहब फरमाया करते थे जिस बात में जोर हो उस पर जोर नहीं लगाना चाहिए, जिस बात में वजन है मुझे उस पर जोर लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा सोने का परिंदा, कानों में सोने की बालियां, मोती है उसकी चूंच में। मौला ये कहां था? फरमाया ज़ेरे अर्श।
मौला ये अर्श का परिंदा है, फरमाया हाँ ये ज़ेरे अर्श रहने वाला परिंदा है। मौला हमारे इलाके में जो परिंदे हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, मौला ये भी बोलता है। इमाम फरमाते बोलता है, सुनना चाहता है, जी मौला सुनना चाहता हूँ। इमाम ने परिंदे की तरफ देख के फरमाया बोल, फौरन बोलने लगा। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह, यानी ज़ेरे अर्श रहने वाले जब तक अली की विलायत का इकरार न करे उनका गुजारा नहीं होता। तेरा कैसे ज़ेरे अर्श की मखलूक बगैर विलायत अली इब्ने अबी तालिब के वो नहीं रहती। अच्छा उनके कलमे में अली है, इसका मतलब अर्श वालों का अकीदा और है, तुम्हारा अकीदा और है। तुम्हें अपना सलामत, हमें अपना, तुम अपने पे रहो, हमें अपने पे रहने दो। इसलिए कि हमारे पास जो दीन है वो अर्श से आया है, हम कलमा भी वही पढ़ेंगे जो अर्श वाले पढ़ते हैं। अल्लाह ने इस खानदान को बड़ी इज्जत अता की। देखिए 12 आइमा नहीं, ये खानदान पूरे का पूरा खानदान। मैं मसाइब की तरफ जाने लगा हूं, तब आएगा जब मैं इशारा करूंगा, तो जो मेरी तरफ रखिएगा जी। सिर्फ 12 आइमा नहीं, ये पूरा खानदान। इनमें से कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं जिसका नाम उसके वालिदैन ने अपनी मर्जी से रखा हो। हर जात का, हर शख्सियत का, हर मर्द का, हर औरत का नाम खुदा की मर्जी से रखा गया। खुदा ने इस इमाम का नाम रखवाया अली, लकब है नकी, मानी है निथरा सुथरा, निथरा सुथरा। जिस घर में एक आलिम हो ना, उस घर में रह के आलिम कहलवाना बड़ा मुश्किल है। जिस घर में पहले 3 अली थे, ये उस घर में रह के अली है। इज्जत के हवाले से, अजमत के हवाले से बिल्कुल अपने दादा अली जैसा। इज्जत के हवाले से, अजमत के हवाले से बिल्कुल अपने दादा अली जैसा। लेकिन अगर गुर्बत की बात करो, जनाब सैयदा की मजलूमियत भी नजर आएगी, मजलूम करबला की मजलूमियत भी इस इमाम की जिंदगी में नजर आएगी, असीर बगदाद की मजलूमियत भी इस इमाम की जिंदगी में नजर आएगी। आइमा अलैहिमुस्सलाम में से किसी इमाम ने एक बादशाह का जुल्म बर्दाश्त किया, किसी इमाम ने 2 बादशाहों के जुल्म बर्दाश्त किया। ये वाहिद इमाम है जिसने 6 बादशाहों के जुल्म बर्दाश्त किया, 6 बादशाहों के जुल्म। बार बार मेरे इमाम को मदीने से बुलाया जाता है। पांच साल के करीब हयात तैयबा है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की, जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। बाप बेटा मिले, उसके बाद फिर ज़ाहिरन जिंदगी में मुलाकात। इसे अगर आप मजलूमियत के तराजू में तोलें तो आपको इंतहा नजर आएगी मजलूमियत की कि 5 साल की हयात तैयबा में बाप से जुदा हुआ। एक शिकवा मुझे अपनी शिया कौम से भी है, पढ़ने वालों से भी, सुनने वालों से भी, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद वाले जो आइम्मा हैं उनकी सीरत पर गुफ्तगू की ही नहीं गई। अवाम सुनना भी नहीं चाहते, खुतबा मेहनत भी नहीं करना चाहते। फिर उसका नतीजा यह निकला कि अगर कोई खतीब कोशिश करे तो फिर उसे बड़ी मुश्किल पेश आती। मजमा तवज्जो नहीं करता, मजमा सुनना नहीं चाहता। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक ये 4 इमाम हमारे इमाम नहीं, हमारे इमाम 12 है। 12 की सीरत। मैं अभी जब बैठक में बैठा था तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के 5 वाक़यात सुनाएं तो आप सुना सकते हैं। मैं आपको कहूं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के 5 वाक़यात सुनाएं, कोई नहीं सुना सकता। 5 साल की हयात तैयबा में बाप से जुदा किया गया। इस घर का हर फर्द मजलूम। देखिए जहर इमाम हसन मुज्तबा को भी दिया गया, जहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी दिया गया,
طویل مصائب مجھے نہیں پڑھنا، بس آپ کی توجہ مجھے مصائب کی طرف لانی ہے۔ زہر امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، سب کو زہر دیا گیا۔ لیکن باقی ائمہ میں اور امام علی نقی علیہ السلام میں ایک فرق ہے جو آپ کو سنایا گیا، چلو میں وہی بات کر لیتا ہوں۔ امام حسن کو زہر دیا گیا 27 صفر کو، شہادت ہے 28 صفر کو۔ ایک رات مظلومیت کی گزاری، وہ غربت میں، وہ تکلیف میں، جب جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ رہا تھا، ایک رات گزاری۔ زینب و کلثوم جیسی بہنیں ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے موجود تھی، ایک رات امام نے تڑپتے ہوئے گزاری۔ تابوت بھی اٹھاتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، ہائے حسن بھی کہتے ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام کو زہر 25 جمادی الثانی کو دیا گیا ہے، شہادت 3 رجب کو ہے۔ 8 دن مسلسل، دن کو بھی رات کو بھی امام کا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ رہا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام عالیہ تھا، بار بار اپنی چادر سے باپ کا منہ صاف کر کے کہتی تھی تجھے کہاں لے جاؤں جہاں زمانہ ظالم۔ تقریباً ہر امام نے ایک حسرت ظاہر کی، وہی حسرت امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ظاہر فرمائی تھی، میں جناب کو سنا دوں گا۔ خون کی الٹیاں آتی ہیں امام، 8 دن مسلسل۔ بہت بڑی غربت ہے کہ 8 دن مسلسل انسان کو خون کی الٹیاں آئیں اور جگر ٹکڑے ہو کے باہر آئے، اور ایک ہی بیٹی ہے جو باپ کا چہرہ صاف کرتی ہے بار بار۔ 4 بیٹے ہیں میرے مولا کے، محمد، حسن، حسین، جعفر، اور ایک بیٹی نام عالیہ یا علیہ، 2 نام تاریخوں نے لکھے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک نام تھا بیٹی کا۔ روتے تھے بار بار، لیکن اپنی غربت پہ نہیں، فرماتے تھے دادا مجھے زہر ملی ہے، میرا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، مجھے بار بار پانی کی پیاس محسوس ہوتی ہے، میری بیٹی مجھے پانی دیتی ہے، میرے بیٹے مجھے پانی دیتے ہیں، دادا تیری غربت نہیں بھولتی، تیری بیٹی 7 قدم پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جو نقوی سادات بیٹھے ہیں، دل دکھے تو مجھے معاف کیجئے گا، میں پہلے جملہ چھوڑ جانے لگا تھا، لیکن جب مولا ناراض نہ ہو جائے اب میں جملہ چھوڑتا نہیں۔ جب مولا کو بلایا گیا نا مدینے سے سامرے، تو بادشاہ وقت جب مولا پہنچے دربار کے باہر تو بتایا گیا بادشاہ کو، جو متوکل تھا اس وقت، متوکل کو بتایا گیا کہ علی نقی آ گئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی میں مصروف ہوں، انہیں باہر کھڑا رکھو۔ امام کھڑے رہے، روتے رہے۔ مورخین نے لکھا 3 یا 4 گھنٹے کا وقت ہے جتنی دیر امام دربار کے باہر کھڑے رہے، روتے رہے۔ یوں امام علی نقی علیہ السلام روئے، اس شدت سے روئے کہ جب امام نے اس شدت سے روئے نا کہ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، یوں میرے مولا نے دیوار کا سہارا لے لیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ یحییٰ بن ہرشمہ بن آیون پاس تھا، اس نے کہا مولا یوں تڑپ تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں، ابھی بہت صاحب کو اندر بلا لے گا، مولا سفر میں تھک گئے ہیں۔ فرمایا نہیں اس لیے نہیں روتا۔ مولا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں مرد ہوں، مجھے کچھ دیر باہر کھڑا کیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہاں ہجوم بھی کوئی نہیں ہے۔ مولا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا 1600 میل کا سفر کر کے گئی تھی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، پیروں کی تلیاں زخمی تھی، 3 دن شام کے باہر کھڑی کی گئی تھی، اور پھر جب دربار کے باہر کھڑی تھی رو کے کہتی تھی او میں محمد کی بیٹی ہوں، او میں عباس کی بہن ہوں، او لمبا سفر کر کے آئی ہوں، سر پہ میرے چادر نہیں ہے، شرابیوں کا ہجوم ہے۔ امام فرماتے میرے پاس ہجوم بھی نہیں، میں تھک گیا ہوں۔ وہ تو 1600 میل کا سفر کر کے آئی۔ زہر ملا امام کو، 8 دن امام مسلسل تڑپتے رہے، جگر ٹکڑے ہو کے آتا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ 27 صفر کو زہر ملا ہے، 28 کو شہادت ہے۔ جناب قاسم سے فرمایا تھا قاسم بیٹا جا کے میری بہنوں کو اطلاع دے کیا۔ جناب قاسم آئے، عالیہ کے دروازے کے باہر بیٹھے، بی بی جو نماز تہجد کے لیے اٹھی، جناب قاسم بلند آواز سے روئے۔ فرمایا اما فضا جا دیکھ کیا میرے دروازے پہ یتیم کون ہے، اسے کہ نماز فجر کے بعد آنا، جو مانگے گا علی کی بیٹی عطا
करेगी। बीबी फिजा गई, दौड़ के वापस आई, फरमाया अली की बेटी मुझे लगता है तू उजड़ गई है। अम्मा फिजा क्या हुआ? फरमाया कोई और यतीम नहीं, तेरा भतीजा कासिम तेरे दरवाजे पे है। अली की बेटियों से चादरें न संभली, दौड़ के बीबी कासिम क्या हुआ? फरमाया पुप्पी बाबे को जहर मिल गया है, मेरे बाबे का जिगर टुकड़े हो के आ रहा है। बीबी आलिया तेज कदमों से दौड़ी, जब बीबी हुजरे के करीब पहुंची ना इमाम हसन के, इमाम हुसैन से इमाम हसन ने फरमाया हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े छुपा ले, ज़ैनब आ रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन मर जाए। कबल इसके कि इमाम हुसैन टुकड़े छुपाते, बीबी ने हुजरे के दरवाजे पे आके फरमाया हसन मुझे पहचान में हाजिरा नहीं, मैं ज़ैनब हूं, न छुपा जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर में मां जहरा वाला हौसला है। अपने हाथों से जिगर के टुकड़े इकट्ठे किए। बहन जो मौजूद थी जनाबे ज़ैनब आलिया, तो अपने हाथों से हसन के जिगर के टुकड़े, जो मैंने जुमला आपको कहा था सुनाऊंगा, हर इमाम ने हसरत जाहिर की। ये जो 2 और 3 रजब की, यानी ये जो रात है, ये जो रात आई ना, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे जहर की शिद्दत की वजह से। तड़पते तड़पते एक जुमला फरमाया इमाम अली नकी ने, फरमाया लईत अली उख्तुन कमासा ले अकीलतुल कुरैश, फरमाया काश मेरी बीबी ज़ैनब जैसी कोई बहन होती जो मेरे जिगर के टुकड़े इकट्ठे करती। सरहाने की तरफ से 2 आवाजें आई, फरमाया अली नकी घबरा नहीं, तेरी दादी जहरा भी आ गई है, तेरी दादी ज़ैनब भी आ गई है। हम तो तब से जनाजों के पीछे पीछे चल रही है जब उम्मत ने मदीना छुड़वाया था। हमारे घर से जनाजों की तादाद अभी तक खत्म नहीं हुई। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम सोमवार के दिन 3 रजब दोपहर के वक्त इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटों ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, जनाजा उठा के चले। मेरा दिल करता है याद करूं उस गरीब को जिसके सारे मारे गए थे, इधर उसने सारे सजदे में रखा, शिमर पोस्ट पे चढ़ के बैठा, उसने ज़रबे चलाई, सर तन से जुदा हुआ। 4 साल की बेटी गोद फैला के पीछे पीछे जाके कहती थी और तूने मार तो लिया है, अब मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। कोई नहीं था जो दफन करता, कोई नहीं था जो गुस्ल देता, कोई नहीं था जो कफन पहनाता। 12 मुहर्रम को बहन जो आई ना लाश पर, फरमाया तू वही हुसैन है जिसके लिए लिबास जन्नत से आता था, तू वही हुसैन है जिसके लिए नाना का सजदा रुक जाता था। कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मैं तो वही हूं, हाल अंती ज़ैनब बिन्त अली, तू वही ज़ैनब है जो बाबा अली से पर्दा करती थी। हाँ भाई मैं वही हूँ। फरमाया भाई तेरा सर कहाँ गया? फरमाया अम्मा जाई मेरा सर तो मेरा कातिल ले गया। ऐना रिदाओ किया ज़ैनब, अम्मा जाई तेरी चादर कहाँ गई? फरमाया जो तेरा सर ले गया वही दर्दो मारी की चादर